before respected media persons were discussing with me कि हम लोग क्यों यहाँ why we are gathering today. Two things. One, first time in the history the AQI crossing 1000 plus. What is an AQI? This is the measure, Mapdand to measure the quality of the air which all of us are breathing, which leads to the various diseases of the lung. And there is no movement about asking the pure air which is right of all of us. Indian Chest Society is the leading representation of pulmonologists in the country, who has taken this project to address the government, address the public at large to make them aware. Second issue is that basic specialty of teaching respiratory medicine in undergraduate. MBBS को respiratory medicine की एक महीने की क्लासेस पढ़ाई जाती थी डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन जो मेडिकल कॉलेजेस में है. नेशनल मेडिकल कमीशन ने उस डिपार्टमेंट को ही खत्म कर दिया है. 3 बच्चों को चेस्ट की बीमारियां पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट इनको पढ़ा देगा. अब एक सुपर स्पेशलिस्ट हु इज एक्सपीरियंस्ड टीचिंग द डिजीज will teach better, or the person who has zero experience in treating those diseases will teach better. ये सब आप you all will be deciding. That is the agenda today. I welcome you all to this press conference amid rising lung health problems because of increasing air pollution, challenges to control tuberculosis epidemic, ever spiraling of respiratory disease burden in OPD of primary care, Indian physician, and threat of COVID-like pandemic looming large in the future. The press conference is arranged by Indian Chest Society, the national body which was founded in 1981, and the society aim is to better lung health care in India by making guidelines for managing lung diseases, concerning India by educating its members about latest in area of the lung health. So I would also draw your attention later to the shocking decision of National Medical Council. What is the shocking decision we will describe as we are proceeding after this, and then we will have your questions. That Medical Council has removed respiratory medicine from the undergraduate course to train them, teach them. And these are the doctors who go to the villages, those who go and represent medical profession in villages to treat, and if they are not trained, how it will be. So, before now, I will introduce my keynote speakers. The most senior, Professor G.C. Khilnani, who is Chairman North Zone India of Indian Chest Society, ex-professor and head All India Institute of Medical Sciences, and now as a consultant, senior consultant and chairman, Department of Respiratory Medicine, PSRI, Delhi. I welcome Dr. Manoj Goel. He is principal head and director, Department of Chest, Fortis FMRI, Gurgaon. On my right side is Dr. Arun Madan. He is professor and head, Medical College, Hindu Rao, looking after the department. On extreme right is Dr. Aditya Chawla. He is consultant in respiratory medicine. We have brought him, involved him as a younger brigade, that the younger people who are walking in for after passing out of this specialty, what will be the problems these youngsters are going to face when you are stopping altogether the teaching of respiratory medicine. I myself is Dr. Rakesh Chawla, who is chairman and head Department of Respiratory Medicine in Jaipur Golden Hospital, Saroj Super Specialty Hospital in Rohini. So now to make you a prize of all this, I invite now Dr. G.C. Khilnani, who is a celebrity in the country, who you must have seen his videos on atmospheric pollution, lung health, cigarette smoking, its effects,
they are the flag bearers of the atmospheric pollution and its hazardous effect. So I will start with Professor Khilnani. Please enlighten us with the air pollution in India, with particulate matters, and about the COVID time, how important it was, the respiratory medicine. Professor Khilnani, sir. मेरा नाम डॉक्टर खिलनानी, मैं WHO एक्सपर्ट कमेटी जो ग्लोबल एयर पॉल्यूशन में उसको इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ पिछले 4 साल से। और एयर पॉल्यूशन में मेरा 40 साल से मैं इसमें रिसर्च में इन्वॉल्व हूँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। जो आप हमारे यहाँ जो CNG आया है और ये जो भारत 6+5 और ये सब एक रिसर्च का ही नतीजा था जो मेरे सीनियर डॉक्टर पांडे की लीडरशिप में हमने एक स्टडी करी। अभी मैं आपसे ये कहूँ कि भाई एयर पोल्यूशन हर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आता है। हम लोगों की एक आदत सी बन गई है भाई ठीक है ये तो आना ही था, दिवाली आई है, पटाखे जलते हैं या नहीं जलते हैं या पराली जलती है, न्यूज़पेपर भर देते हैं आप बिल्कुल जो है ना कि ये हो गया फलाना हो गया। 999 के मशीन भी मेजर नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपको थोड़ा डराना चाहता हूँ। हम सबका गला खराब है। आप फ्लाइट से उतरते हैं कहीं बाहर से आते हैं, जब तक घर पहुँचते हैं तब तक आपकी नाक बहने लगती है, गला खराब होता है, आँखें जलने लग जाती है, स्किन में इरिटेशन होने लग जाती है, आपकी नींद अफेक्ट कर जाती है। तो आप सोचते हो ये समय भी निकल जाएगा। लेकिन सच क्या है? सच ये नहीं है कि जो वायु प्रदूषण है वो हमारे लंग को अफेक्ट करता है और हमें खांसी होती है। ये सच नहीं, ये सच है। लेकिन इससे बड़ा सच है कि जो आदमी दिल्ली में पैदा हुआ और दिल्ली में बड़ा होता है उसके 11.9 साल जीवन काल कम हो जाता है। और जो भारत में है जो एवरेज जीवन काल है वो 5.3 साल कम हो जाता है। ये शिकागो की स्टडी अक्टूबर 2023 में पब्लिश हुई। क्योंकि जो वायु प्रदूषण है वो सिर्फ ये नहीं करता कि खांसी करता है। आपने सुना होगा भाई आज PM 2.5 इतना हो गया, या AQI क्या होता है? AQI कोई एक चीज नहीं होती। AQI 6 पैरामीटर्स का एक मिश्रण होता है। उसमें पार्टिकुलेट मैटर होता है जो कि पार्टिकल एरोडायनामिक होते हैं PM10 और PM 2.5। PM10 जो होता है वो हमारे नाक के फिल्टर को पार करके नीचे चला जाता है, और जो 2.5 होता है वो लंग के निचले हिस्से में चला जाता है और वहाँ जाके जमा हो जाता है, डैमेज करता है, जहाँ पर कि गैस एक्सचेंज होती है। लेकिन जो आपको पता नहीं है और जो हम मेजर नहीं करते हैं यूजुअली, वो सबसे खतरनाक होता है अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर 0.1 माइक्रोन। और उससे छोटे जो पार्टिकल होते हैं वो जो एल्वियोलाई जो लंग का सबसे छोटा हिस्सा होता है उसको पार करके ब्लड में चले जाते हैं। उसके द्वारा वो ब्लड वेसल में जाके हार्ट अटैक करते हैं, ब्रेन अटैक करते हैं, डिमेंशिया करते हैं। और उसके जो इवन जो हमारे यूरिनरी सिस्टम है उसका भी कैंसर होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी कैंसर होता है, रिप्रोडक्टिव रेट कम हो जाती है, इनफर्टिलिटी भी होती है। और जो बच्चा गर्भ में होता है उसकी ग्रोथ भी कम हो जाती है, जिसको हम IUGR इंट्रा-यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहते हैं। और अबॉर्शन रेट्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन सब का असर पड़ता है, लेकिन उसको मेजर करना डे टू डे लाइफ में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन डेटा है। अब जो बीजिंग की बात करें, चाइना, तो हम कहते हैं कि 5.3 साल की उम्र कम हो गई। तो बीजिंग में करीब 18 साल पहले इतना ही एयर पॉल्यूशन था जितना हमारे शहर में होता है। और ये वैज्ञानिक प्रमाण है कि बीजिंग में उन्होंने वॉर फुटिंग पे एयर पॉल्यूशन को मेजर किया और उनका जीवन काल 2.2 साल बढ़ गया। ये भी शिकागो स्टडी में उन्होंने बताया। अब प्रश्न ये है कि हम क्या कर सकते हैं? एक्चुअली आप कहेंगे आप इतने सारे डेटा बता रहे हो, लेकिन समाधान क्या है? हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। हम
पॉलिटिकली बोले तो भाई एयर पॉल्यूशन सबकी समस्या है, सबकी समस्या तो है, लेकिन आता कहाँ से? आता कहाँ से? गाड़ियाँ चलती है। कैलिफोर्निया की बात करें तो 100 साल पहले इतना ही पॉल्यूशन था जितना दिल्ली में। 100 साल के अंदर उनकी गाड़ियों की संख्या 10 गुना बढ़ गई और उनका पॉल्यूशन 10 गुना कम हो गया, क्योंकि उनकी इंजन क्वालिटी और फ्यूल क्वालिटी को उन्होंने स्ट्रिक्ट मेजर किया। एक मैं आपको 5-6 चीज बताता हूँ जहाँ से सबसे ज्यादा हम पराली को हर बार करते हैं। पराली से बहुत नुकसान होता है, लेकिन पराली तो 2-3 महीने ही जलती है। ज्ञान है इसमें 40 साल के एक्सपीरियंस के साथ। एक डॉक्टर मुकेश शर्मा है। पहले तो मैं आपको AQI बताता हूँ क्या होता है। AQI जो होता है वो 6 पैरामीटर्स का मिश्रण होता है, जिसमें PM2.5 या PM10, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उसके अलावा ओजोन और लेड अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा क्योंकि पेट्रोल में से लेड खत्म हो गया, लेकिन इन सब की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। ये AQI बना था 2012 में डॉक्टर मुकेश शर्मा, IIT कानपुर के सिविल इंजीनियर है, बहुत रिसर्च करिए। उस कमेटी का मैं भी एक हिस्सा था, करीब 10 मेंबर की वो कमेटी थी। वहाँ से ये कहानी शुरू हुई है AQI। अब इन्होंने ये रिसर्च 2016 में डॉक्टर मुकेश शर्मा और डॉक्टर द्विवेदी ने एक और रिसर्च करी दिल्ली में। उसमें उन्होंने बताया कि अगर आप ये 6-7 स्टेप लेते हैं तो उन स्टेप को मैं आपको गिनाऊंगा। अगर आप सड़कों को महीने में 4 बार पानी से धोएं, महीने में 4 बार वैक्यूम क्लीनिंग कराएं, सारी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें जो पैरामीटर्स हैं जो कवर करना होता है, हर जो पत्थर मिट्टी जो भी वो ट्रांसपोर्ट होता है या सीमेंट मिलता है उसको अगर उसके पैरामीटर्स को फॉलो करें। उसके अलावा जो रोड के साइड में जो कारपेट उसको कहते हैं उसको अगर ग्रीन कर दें, और जो वेस्ट बर्निंग होती है, जो दिल्ली की वेस्ट आपने सुना होगा इतनी खराब होती है, 3 से 5% जो पॉल्यूशन है दिल्ली का सिर्फ वो जलने के कारण आता है। और जो कोल जो जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसमें मशीनें उपलब्ध हैं जिससे कि डीसॉक्स और डीनॉक्स कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो मेन गैस निकलती है वो नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होती है। अगर ये 2 मशीनें उसमें लगा दी जाए तो उसका एमिशन भी खत्म हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारे तरीके साइंस हमें पता है, लेकिन ये है कि आपके जरिए मैं चाहूँगा कि आप सरकार को अवगत कराएं कि ये, और ऑफकोर्स फ्यूल क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात ये है कि ट्रैफिक जो अगर गाड़ी चलती रहती है तो एमिशन बहुत कम होता है। जब गाड़ी खड़ी रहती है, जब भी ट्रैफिक जैम होता है, जब आपको गुड़गांव से दिल्ली आने में 3-3 घंटे लगते हैं, उस समय जो एयर पॉल्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, सेवरल टाइम ज़्यादा निकलता है एज कम्पेयर टू कार विच इज रनिंग। तो ये सब अगर हम करें, वो एक कबीरदास जी का दुआ है। आपको अजीब लगेगा कि मैं वो क्यों सुना रहा हूँ। कबीरदास जी से क्योंकि WHO की 3 साल पहले जेनेवा में मीटिंग हुई थी, मैं वहाँ बैठा हुआ था और मेरे साथ डॉक्टर मुकेश शर्मा जिनकी मैं बात करता हूँ, आई रियली प्रेज हिम बिकॉज़ रिसर्च वर्क। तो उन्होंने WHO क्या करता है कि इंटरनेशनल डेटा को कोलेक्ट करके एक रिकमेंडेशन बनाता है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ और वो क्या कह रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो मास्क है जिसको टेक्निकली हम रेस्पिरेटर कहते हैं, हमने कोविड टाइम में बहुत ऐसी कोई चैनल नहीं थी जिसमें हम लोगों ने जाके बोला नहीं कि आप कपड़े का मास्क पहनो, 3 प्लाई मास्क पहनो, कपड़े को धो लो फिर उसको बांध लो तो आपका बचाव हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वैज्ञानिक प्रमाण है एयर पॉल्यूशन वो से कोई भी मास्क आपको बचाता है, स्पेशली जो 3 प्लाई मास्क होता है, जो सिंपल मास्क होता है जो डॉक्टर मनोज ने भी लगाया हुआ था, वो कोई फायदा नहीं है। अगर आपको
कोई थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा तो N95 जिससे कि काफ़ी घुटन होती है, हमने कोविड में हम सबने लगाया, वो प्रॉपरली बांधेंगे तो शायद आपको कुछ फायदा हो। दूसरा ये कि काफ़ी लोग सुबह वॉक करते हैं या कुछ एक्सरसाइज करते हैं, तो जब सुबह अर्ली मॉर्निंग स्मॉग होती है, स्मॉग क्या होती है? स्मॉग इज कॉम्बिनेशन ऑफ फॉग एंड एयर पॉल्यूशन। जब फॉग होता है, एयर पोल्यूशन होता है, तो एक मैकेनिज्म होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन के दौरान जो पॉल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, ठंडक होती है। तो जब आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं सुबह के टाइम पर, जब धूप अभी नहीं निकली है, तो आप सारा पॉल्यूशन अपने अंदर ले रहे हैं। एक तो ये बात, हम नॉर्मली 500 ml हवा हर सांस के साथ लेते हैं और करीब 1 मिनट में 10 लीटर या उससे भी ज़्यादा हवा जाती है, नाक के जरिए जाती है, हम सबके मुंह बंद है इस समय। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो 5 गुना हवा जाती है और आपका मुंह खुल जाता है, तो बिना फिल्टर के सीधी हवा आपके लंग में जाती है। तो अगर आप सुबह स्मोक के टाइम पर अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं और फायदा नहीं कर रहे। तो आप ये कहेंगे कि भाई आप इसका क्या प्रमाण है आपके पास, आप तो बातें कर रहे हो खूब सारी। तो एक शोध हुआ था, क्योंकि आप सब लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि बिना प्रमाण के मानेंगे नहीं बात। तो एक शोध हुआ था लंदन में, आप कुछ लोग वहाँ गए होंगे, वहाँ 60 बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और हम लोग को सुनने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए। जिलानी सर ने काफ़ी एलोबरेट डिस्क्राइब किया है पोल्यूशन, उसके हैज़ार्ड और उनसे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, कारण क्या है। तो ये टॉपिक काफ़ी कुछ कवर हो चुका है, पर बस मैं एक दो बातें आपको और इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। वो ये है कि जो लंग्स हैं, एक शरीर का वो ऑर्गन है जो कि एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, और लंग हमारी ज़िंदगी की लाइफ लाइन है। लोग हार्ट के बारे में कंसर्न रहते हैं, डायबिटीज़ बारे में कंसर्न रहते हैं, शुगर के बारे में कंसर्न रहते हैं, पर लंग जब तक सांस है तभी तक जिंदगी है, ये हम लोग सब जानते हैं, पर इसके बारे में इग्नोरेंट है। ये जानते हुए कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन है जो कि पॉइजनस है, जो लंग को अफेक्ट कर रहा है, कोई इसके बारे में बात नहीं करता है। अगर मैं आपको कुछ डेटा देना चाहता हूँ कि कैसे लंग को ये जो पोल्यूशन अफेक्ट करता है, और ये जो डेटा है वो बेसिकली इंटरनेशनल जर्नल से हैं, WHO के हैं। बीमारियाँ क्या क्या हो सकती हैं? बीमारियाँ अस्थमा हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज COPD से कहते हैं, वो हो सकती है, लंग कैंसर हो सकते हैं, TB का इंसिडेंस बढ़ सकता है, और ऊपर का जो नज़ला होता है, साइनस का प्रॉब्लम है, वो सारा भी बढ़ सकता है। ये बहुत सारे कॉमन लंग की प्रॉब्लम है जो कि इस समय आते हैं इन मरीजों में, और ना केवल ये प्रॉब्लम ज़्यादा उभर के आती बल्कि वो ट्रीट करना भी मुश्किल हो जाता है। सीरियस होते हैं ज़्यादा, सिम्टोमेटिक ज़्यादा होते हैं, कई सारे पेशेंट ICU में चले जाते हैं, सांसी तकलीफ के साथ, खांसी के साथ, बलगम के साथ, बुखार आने के साथ, खून आने के साथ, स्पूटम में जो बलगम उसमें स्पूटम के साथ, और कई सारे पेशेंट ICU में चले जाते हैं। और जो OPD पेशेंट भी हैं उनके भी सिम्टम्स बने रहते हैं। आप अच्छे से अच्छा इलाज करो, उनको रिलीफ नहीं मिलता है, बिकॉज हमारे चारों तरफ जो हवा है वो तो पॉइजनस है। तो ये क्लिनिकल सिनेरियो है जिसमें लंग्स सीवियरली अफेक्टेड है। मैं आपको बताऊं डेटा क्या है इसका। अगर आप देखें जो एयर पोल्यूशन है, ये हमारे देश में करीब 90% पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, 90%। और जो जिसकी बात सर कर रहे थे PM 2.5, ये देखा गया है करीब 99% पॉपुलेशन जो हमारे देश की वो इससे अफेक्टेड होती है। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारा वल्नरेबल ग्रुप है, जो हमारा क्या कहते हैं, जो गरीब वर्ग है, जो पुअर तबका है, उस पर इसका सबसे ज़्यादा असर होता है, क्योंकि वो अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं, रोड साइड रहते हैं, उनके घर में चूल्हा चल रहा होता है, और ऊपर से पोल्यूशन हो रहा होता है। और ये देखा गया है करीब 14.7% ऑफ इंडिया की ओवरऑल जो पॉपुलेशन है, जो गरीबों की है, वो इससे अफेक्टेड है, जो कि बहुत बड़ा डेटा है। और ये डेटा जो आया है, ये ग्लोबल एयर पोल्यूशन एक्सपोजर इन पॉवर्टी, एक नेट कम्युनिकेशन आपका एक जर्नल है, उसमें पब्लिश, इंटरनेशनल जर्नल फॉर पब्लिश हुआ, और इसमें ये हमारे देश का डेटा है। और जो मैंने आपको बताया कि 99% और 90% हमारी पॉपुलेशन अफेक्टेड है, WHO का डेटा है 2023 रिपोर्ट के साथ कि पोल्यूशन से हमारे देश में कितना ज़्यादा खतरा हो रहा है। अगर हम देखें कि लॉन्ग टर्म हेल्थ इंप्लीकेशंस क्या है, जैसे कि अस्थमा कितना हो सकता है और COPD कितना हो सकता है, तो ये देखा गया है कि 2019 में एयर पोल्यूशन कंट्रीब्यूटेड टू 1.67 मिलियन डेथ्स इन इंडिया, 1.67 मिलियन डेथ्स इन इंडिया, अकाउंटिंग टू 70.8% टोटल डेथ इन द कंट्री। यानी करीब 20% डेथ जो 2019 जो हुई थी वो एयर पोल्यूशन की वजह से हुई थी। ये जो डेटा आया है, ये लैंसेट प्लैनेट हेल्थ 2021 जो कि
दुनिया का सबसे माना हुआ, जैसे न्यू इंग्लैंड जर्नल मेडिसिन होता है उसमें से माना हुआ जर्नल जिसमें ये डेटा पब्लिश हुआ है, और ये हमारे देश के बारे में डेटा है, ये बहुत ही खतरनाक। अगर आप देखो टीवी MBBS because to remove the burden कि बच्चों के जो बस्ते हैं, जो गधे का बोझ केजी में और अपर केजी और लोअर केजी का बच्चा लेके स्कूल में जाता है, तो MBBS के सिलेबस का बर्डन हम कम करना चाहते हैं। इसलिए डिपार्टमेंट सी सिर्फ रेस्पिरेटरी नहीं, बाकी भी 7-8 डिपार्टमेंट्स हटा दिए। कौन पढ़ाएगा? देश है इंटरनल मेडिसिन पढ़ाएगा। इंटरनल मेडिसिन को आज भी जो खिलानी सर ने कहा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पढ़ना नहीं आता, ये इनसाइड स्टोरी है। दे डू नॉट नो हाउ टू रीड, हाउ टू इंटरप्रेट, तो डायग्नोसिस तो बहुत दूर की बात है। तो ये रेस्पिरेटरी डिजीज के साथ हाउ टू डील, यू नीड योर प्राइमरी MBBS फिजिशियन जिसने जाके हिंदुस्तान की पॉपुलेशन को ट्रीट करना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई हमें यहाँ सुनने के लिए। मैं असल में यूजी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ मेडिकल कॉलेज इंदौर हॉस्पिटल, तो मैं वहाँ से शुरू करूँगा थोड़ा सा, और फिर टीबी पे भी आऊँगा। जनरल टेस्ट की टीबी उससे पहले टेस्ट। अपने शरीर में सिर्फ 2 सिस्टम्स हैं जो कि बाहर के वातावरण से सब खुले हुए हैं। एक तो GIT खाने वाला सिस्टम, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब सांस वाला। हम दिन में कितनी बार मुंह खोल के कुछ खाते हैं पीते? 10 बार, 20 बार, मे बी 30 बार, मे बी 50 बार। हम सांस कितनी बार लेते हैं? हर मिनट में एवरेज 15 बार, 1 मिनट में 900 बार, मेक इट 1000। एक दिन में 20,000 बार हम सांस लेते हैं, और हर सांस के बाद इंजेस्टेंट्स, इन्फेक्टेंट्स, पॉल्यूटेंट्स, फॉग, स्मॉग, एलर्जेंस, पॉलन्स, सब चीज़ें हमारे अंदर जाती हैं और फिर वो बाहर निकलती हैं, ठीक है, और इस फेफड़ों के अंदर रुक जाती है। इसका प्रतिफल क्या है कि हर OPD, ये मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, हमारी बुक है कि फेयर ब्रदर्स बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, उसमें न्यूमोकोकस के चैप्टर के अंदर एक चैप्टर है कोरिलेशन ऑफ सिम्पटम्स टू लीजन्स, उसमें से मैं बोल रहा हूँ। अंडर ग्रेजुएट की बुक है कि हर मेडिकल आउटडोर के अंदर 50% केसेस रेस्पिरेटरी सिस्टम को बिलोंग करते हैं। ये डाटा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। अगर 100 मेडिसिन के पेशेंट्स हैं, 50 खाली चेस्ट के, ठीक है, और इसके चेस्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निमोनिया, एलर्जी, एस्थमा, COPD, छाती में पानी भर जाना, कैंसर्स, और जो पोल्यूशन के बारे में बहुत अच्छा बताया सर ने, उस बारे में बता रही थी। अब मैं थोड़ा सा आपको टीबी पे बताना चाहूँगा। टीबी के बारे में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। इस वक्त इंडिया में टीबी का इंसिडेंस रेट है 17.7%। वैसे ये रिपोर्ट वैसे आज सुबह का ही मैंने डाउनलोड किया है, वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट 2024 टुडे मॉर्निंग, उसमें से मैं बता रहा हूँ। टीबी का इंसिडेंस रेट है इंडिया में इस वक्त 17.7% कम हुआ है, ठीक है। हमारा टारगेट था 2025 में 50% कम करने का, कि भाई 2015 में ये WHO की रखी थी मीटिंग, जिसमें 2020, 25, 30, 35 तक के टारगेट तय किए गए। 2025 का टारगेट था कि हमारे कम हो जाने चाहिए 50%। हम कहाँ पहुंचे हैं? सिर्फ 17.7%। इवन हम 2020 के टारगेट तक भी नहीं पहुंच सके, दैट वाज 20%। हम 2025-24 के एंड तक हम 2020 के टारगेट को नहीं पहुंचा सके। आई डोंट नो हम कैसे हम टीबी खत्म करेंगे 2025। टीबी एलिमिनेशन का एक डाटा है कि केसेस होने चाहिए लेस देन 1 मिलियन पर फ्रेश केस, जिसको हम इंसिडेंट रेट कहते हैं। 1 लाख में 1 मरीज से कम होंगे तब टीबी का इरेडिकेशन माना जाएगा। और हमारे कितने हो गए? 1950 केसेस प्रति 10 लाख टीबी के केस डायग्नोस। इंडिया में हर मिनट में 5 नए टीबी के केस डायग्नोस होते हैं। नाउ आई कम टू इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा, बता दिया आपको। देयर आर टीबी डेथ्स। ओवरऑल टीबी दुनिया के प्रथम 10 कारणों में से आती है टीबी की डेथ की वजह, तो ये बढ़ रहा है। किसी हो सकता है परसेंटेज में कम हो रहा है, पर टोटल के अंदर बढ़ रहा है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। एक आपने वर्ड सुना होगा MDR केसेस,
मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, उसका दृश्य मैं बताता हूँ तो अगेन इट इज गोइंग टू ऑलमोस्ट फेंटिंग होने वाला है। 1,35,000 एमडीआर टीबी के केसेस इंडिया में होते चाहिए, इसमें से 96,000 छूट जाते हैं। तो आप में 40,000 बचे जिनको पकड़ा जा सकता है, जिनको हम डायग्नोज कर लेते हैं। उन 40,000 का 1/4 दैट इज 10,000 की ट्रीटमेंट शुरू करा पाते हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। और एमडीआर टीबी का ट्रीटमेंट रेट इज क्योर रेट इज ओनली 50%। तो 10,000 में ठीक कितने होते हैं? 5%। 1,35,000 एमडीआर टीबी केसेस में से हम सिर्फ 5,000 को ठीक कर रहे हैं। एक चीज का सड़क पे घूम रहे हैं एंड व्हाट दे विल डू टू द सोसाइटी। और टीबी के लिए ना इट टेक्स टाइम, 5 साल यूनिवर्सिटी पढ़ना होता है, फिर 3 साल एमडी करनी होती है, फिर आपको कम से कम 5 साल तक एक अपने सीनियर कुली, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एसोसिएट हो, सीनियर असिस्टेंट हो, उसके छत्रछाया में आप काम करते हैं, तब आप इस लायक हो पाते हैं कि आप टीबी के बारे में समझ सकें। जब मैं हाउस जॉब कर रहा था किंग्सवे कैंप में, आर्मी टीबी हॉस्पिटल, एशिया का बिगेस्ट हॉस्पिटल, उस बस के अंदर people traveling to that direction are having at least 5 or 10 passenger tuberculosis। हम लोग कितना ध्यान करते हैं, कोविड का टाइम भूल जाओ, खांसी करते हैं। अगर आपने उसे कहा भाई साहब ये मेरा रुमाल ले लो और आप खांसी रुमाल में कर लो, बस से उतरते ही आपका कत्ल करेगा कि आपने मेरी बेइज्जती कर दी। This is how the TB is spreading। COVID helped to reduce it। यही डॉक्टर, यही एमबीबीएस, यही चेस्ट स्पेशलिस्ट वर भगवान। Everybody was welcoming them and they are coming to their houses, they are treating, putting their life at stake। आज मैं भी I'm very thankful to all of you media persons for coming and hearing us out। It is a very important point which we are dealing with today। मैं पोसीडियन स्टडी के बारे में बता रहा हूँ। पोसीडियन स्टडी एक दिन में कंडक्ट की गई थी 2015 में। इसमें 2,04,912 पेशेंट्स को एनरोल किया गया और इसमें से 50% पेशेंट्स जो थे वो रेस्पिरेटरी के थे। 7,400 फिजिशियन से सारा डेटा लिया गया उसी एक दिन के अंदर। 2,04,912 पेशेंट्स थे जिसमें से 50% रेस्पिरेटरी सिम्टम से थे, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो टीबी हो, चाहे वो सीओपीडी हो, चाहे वो एक्यूट एलर्टियाई हो, गला खराब हो, जुकाम, नज़ला, बुखार हो, बट ये सारे रेस्पिरेटरी के सिम्टम्स 50% ऑफ द पेशेंट्स में थे। अब ये बात सरकार से पूछी जाए कि इन 50% पेशेंट्स को कौन डील करेगा अगर रेस्पिरेटरी को हटा दिया जाए बीच में से। तो रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है इनको कि ये सारे रेस्पिरेटरी डिजीज से डील किया जाए। सो देयर विल बी a loss of specialized knowledge, there will be reduced quality of patient care and hindrance of the national health programs also। Loss of specialized knowledge because जो पीजी बनता है उसके लिए 3 साल की एक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग होती है, वो एमडी चेस्ट करके आ रहा है बिकॉज उसके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया गया। अगर अब इसको हटा दिया जाए और जनरल मेडिसिन के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाए तो उस रेस्पिरेटरी मेडिसिन को कितने दिन दिए जाएंगे पढ़ाने के लिए? मैक्सिमम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, बिकॉज सारे सिस्टम को पढ़ना है। रेस्पिरेटरी मेडिसिन कितना इंपॉर्टेंट है विच वी ऑल नो। आज भी पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, AQI सर ने बताया, टीबी का सर ने इंसिडेंस बताया, इसको डील कौन करेगा? रेस्पिरेटरी फिजिशियन करेगा, रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट करेगा। कार्डियक के लिए कार्डियक स्पेशलिस्ट है, गायनी के लिए गायनी वाले हैं, ऑर्थो के लिए ऑर्थो स्पेशलिस्ट है, तो रेस्पिरेटरी के लिए रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट क्यों नहीं रहना चाहिए? जनरल पब्लिक क्यों सफर करे इस चीज को? जनरल मेडिसिन आपका सब हर चीज को ट्रीट कर सकते हैं, बाल से लेके नाखून तक देखते हैं, बट चेस्ट का अलग से डॉक्टर अगर है तो उसको हटाया क्यों जा रहा है? एंड सेकेंड थिंग, जो यंगर ब्रिगेड आ रही है, जो अब पीजी करके आ रहे हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। हॉस्पिटल्स में हर जगह नहीं है बिकॉज ऑल द हॉस्पिटल्स आर सैचुरेटेड विद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फिजिशियंस। बच्चा कहाँ जाके अपनी ट्रेनिंग लेगा? जो पीजी कर लिया उसने, उसके आगे भी तो ट्रेनिंग चाहिए उसको। अगले 5 साल जैसे सर ने बोला किसी के तहत काम करेगा, वो कहाँ पे काम करेगा? वो मेडिकल कॉलेजेस में काम करेगा। अगर डिपार्टमेंट ही नहीं रहेगा तो वो काम किसके अंदर करेगा? जनरल मेडिसिन वाला तो उतना ही तवज्जो देगा रेस्पिरेटरी मेडिसिन को जितने की जरूरत है उसके हिसाब से। जनरल मेडिसिन के अंदर सारे सब्जेक्ट आते हैं, रेस्पिरेटरी मेडिसिन अलग से सब्जेक्ट नहीं हटा देना चाहिए।
सो ये दरखास्त है हमारी सरकार से, एनएमसी से, कि प्लीज डोंट रिमूव दिस मेडिसिन, रेस्पिरेटरी मेडिसिन ब्रांच, because it is very essential for population, for the general health of the public, for the respiratory physicians who are being manufactured after doing PGs from the medical colleges. Hindrance to the national health programs, NTP के तहत टीबी हटाने के लिए प्रोग्राम चल रहा है। 2025 तक टीबी को खत्म करने की बात चल रही है और टीबी को खत्म करने वाला डिपार्टमेंट ये हटाया जा रहा है। तो ये सरकार का कौन सा स्टेप है नहीं समझ में आ रहा, बट वी वांट दैट दिस शुड बी टेकन बैक and respiratory department should be reinstated in the MBBS curriculum. Thank you.